Very good morning, everyone. Welcome to the first and inaugural event of Flutter by GDSE DTU. Let me first tell you about what Flutter Forward is. Flutter Forward is one of the flagship level event which is held by Google every year. The main aim of the event is to tell the people about the recent advancement in the field of Flutter and especially in Dart. So as we all know that Flutter is one of the emerging technologies these days. So all the developers around the globe have special attention towards this event. So we will be taking couple of sessions with the same motive. And my name is Sudhanshu Jha. I'm one of the co-lead here at GDSE DTU, and I'm working with Flutter from the last 9 to 10 months now. So now I will like to call our second speaker to introduce himself. Yeah. Hi everyone. So I am Ekaksh and I'm also app dev co-lead at GDSC DTU. And I've been working with Flutter from the past 1.5 years, and currently I'm interning as a full stack intern at uh, Team Blackbox. And my journey so far with Flutter has been super awesome. And that's for the introduction. And now I would like to call our lead, Varun Bhaiya, to introduce himself and share his experiences. So, hi everyone, I'm Varun and I'm the app development lead at GDSC DTU. And I've been working with GDSC for the past 2 years. I'm currently in my third year at the Delhi Technological University pursuing computer engineering. So, GDSC has been a great experience for me, primarily because of the events that GDSC provides us. So, throughout the year, we organize various events in many fields that involve the learning of Google technologies. So, now we are organizing our flagship event of Flutter, in which we would teach Flutter with a couple of sessions. But we also organize sessions based on Google Cloud, Firebase, and other Google technologies as well. So I hope that this Flutter series of ours becomes a learning experience for you so that you can explore Flutter in ways where you could not have explored if you were trying to just watch YouTube lectures or things like that. We would try to provide you with interactive sessions and also doubt solving sessions so that you can take up your doubts and also learn in the best possible manner. So I hope this series of ours is a productive as well as a fruitful experience for you all. Thank you. So now let's begin with our session. तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आज के सेशन में हम क्या-क्या चीज़ें देखने वाले हैं सो दैट आपके पास एक ओवरव्यू रहे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐप डेवलपमेंट होता क्या है और ऐप डेवलपमेंट को ही क्यों हम चूज़ करें ओवर वेब डेवलपमेंट। जबकि हम अपने आस-पास जब भी देखते हैं, किसी से भी पूछते हैं, तो हम जब भी पूछते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है? भाई तू क्या कर रहा है? तो हमें एक ही कॉमन वो मिलता है सुनने को, मैं तो डीएसए कर रहा हूँ। और या तो सुनने को मिलेगा अगर कोई डेवलपमेंट कर रहा होगा कि मैं तो वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ। 10 में से आज भी लगभग 8 बच्चे वेब डेवलपमेंट को ही प्रेफ़र करते हैं, ऐसा क्यों होता है? और हम देखेंगे कि हम जब हमने ऐप डेवलपमेंट चूज़ किया है, तो अब हम फ्लटर को ही क्यों चूज़ करें? रिएक्ट नेटिव भी तो है, नेटिव भी तो प्लेटफ़ॉर्म्स है जो जो हम यूज़ कर सकते हैं, उन फ्रेमवर्क्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जो फ्लटर को यूज़ कर रही हैं और फिर हम देखेंगे कि हम अगर हमें अपने सिस्टम में चाहे हमारे पास विंडोज़ हो, चाहे हमारे पास मैक हो, तो हम फ्लटर को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मैंने और हमारे जो सेकंड स्पीकर है काक्ष उन्होंने जो पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है उनको हमारे प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। गूगल डॉक्स का पूरा क्लोन बनाया है इन्होंने यूजिंग फ्लटर एंड नोड.जेएस और व्हाट्सएप का क्लोन बनाया है। पर्सनल पोर्टफोलियो कोविड-19 जैसी सिचुएशंस को भी उसमें कितने केसेस आए, लाइव केसेस, बिल्कुल रियल टाइम डेटा, इस तरीके के मेजर प्रोजेक्ट्स को भी हम देखेंगे आज के सेशन में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऐप डेवलपमेंट एक्चुअल में होता क्या है। तो हम अपना फ़ोन जभी भी यूज़ करते हैं तो हमारे मन में एक बार तो ज़रूर आती है ये चीज़ कि हाँ यार, मेरा खुद का भी एक ऐप होना चाहिए, जिसको सब यूज़ कर पाएँ, जो गूगल प्ले स्टोर पे भी हो, एप्पल ऐप स्टोर पे भी हो। तो ऐप डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम अपने लिए, अपने डिज़ाइन के हिसाब से, अपने लॉजिक के हिसाब से किसी भी तरीके का ऐप बना सकते हैं। तो उसमें हमारे पास जब हमने ऐप डेवलपमेंट हम चूज़ करते हैं, तो
कई लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है कि ऐप डेवलपमेंट तो काफ़ी मुश्किल है, वेब डेवलपमेंट ही कर लेते हैं। क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आज के टाइम तक भी फ्लटर और रिएक्ट नेटिव जैसी चीज़ों के लिए इतने रिसोर्सेज़ अवेलेबल नहीं है जितना वेब डेवलपमेंट के लिए हैं। पर ये भी एक मिथ ही है देखा जाए तो, क्योंकि ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पास हर टेक्नोलॉजी के हैं और वो भी इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखे होते हैं कि अगर हम उनको एक बार भी एक्सप्लोर करें, तो हमें सब कुछ धीरे-धीरे समझ आ जाएगा। तो फिर उस एक टॉपिक एक आपने पॉइंट सुना होगा कि एक होता है क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म डेवलपमेंट, जो हम किसी भी डेव उस पे ब प्लेटफ़ॉर्म पे अगर हमें चलाना हो, चाहे वो मैक हो, विंडोज़ हो, एंड्रॉयड फ़ोन हो, आईओएस हो, तो हम चाहते हैं हमें यही चाहेंगे ना हम कि हमारा जो ऐप हो वो सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म को सपोर्ट ना करे, वो जितने भी प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल हैं आज के टाइम में मार्केट में सब पे परफ़ॉर्म करे। तो उसके लिए जो होता है हमें क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उनको यूज़ करना पड़ता है। जैसे एक ऑप्शन है हमारे पास फ्लटर और एक है रिएक्ट नेटिव। जो रिएक्ट नेटिव है वो काफ़ी पुराना है, वो फेसबुक के द्वारा बनाया गया है और फ्लटर जो है वो गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है। 2020 में फ्लटर ऑफ़िशियल रिलीज़ हुआ था और उसके बाद से धीरे-धीरे आज आप देखेंगे तो जितने भी स्टार्टअप्स वग़ैरह हैं, सब फ्लटर को धीरे-धीरे यूज़ कर रहे हैं। अब आपको लगेगा कि फ्लटर को ही क्यों लोग यूज़ कर रहे हैं और धीरे-धीरे जितनी भी कंपनीज़ हैं, वो अपना फ्रंट एंड वाला पार्ट रिएक्ट नेटिव से हटा के फ्लटर पे क्यों स्विच कर रही है? तो उसके ना 3 मेजर रीज़न्स होते हैं। एक तो ये होता है कि फ्लटर में जो भी हम ऐप बनाते हैं वो काफ़ी फ़ास्ट डेवलप होता है और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, चाहे आप वेब डेवलपमेंट करें, चाहे आप ऐप डेवलपमेंट करें, आप एक वेबसाइट है ड्रिबल उसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। तो दुनिया के जितने भी बड़े-बड़े यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स हैं, वो सब अपने आकर के अपने जितने भी डिज़ाइन्स होते हैं, हर ऐप के लगभग-लगभग हर ऐप के आपको वहाँ पे डिज़ाइन्स मिलेंगे। तो ड्रिबल पे वो सारे डिज़ाइन्स अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ पे जितना भी कॉम्प्लेक्स यूआई देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स यूआई को आप फ्लटर में काफ़ी ईज़िली बना सकते हैं। क्योंकि का फ्लटर में पहले से ही काफ़ी सारे प्री विजेट्स होते हैं जिनका आप यूज़ करके ईज़िली चीज़ों को बना सकते हैं। फिर एक बात आती है कि हाई परफ़ॉर्मेंस फ्लटर के जो ऐप्स होते हैं वो काफ़ी फ़ास्ट चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने क्लिक किया और 1 मिनट तक आपका ऐप ही नहीं खुल रहा है, व्हाइट स्क्रीन आई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। और एक सबसे मेन रीज़न जो होता है वो हॉट रीलोड वाला फ़ीचर होता है। वो आप जब फ्लटर करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, बट मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता क्या है कि जब भी हम कोई कोई ऐप बना रहे होते हैं, तो हम जैसे-जैसे उसमें फ़ीचर्स ऐड करते हैं, जैसे मैंने कोई बटन ऐड किया, मैंने कोई एक नई स्क्रीन ऐड करी, तो ऐड करने के साथ ही जैसे ही मैं सेव करूँगा उस चीज़ को, जैसे ही मैं हॉट रीलोड करूँगा तो तुरंत विदिन अ सेकंड्स जो हमारा एमुलेटर होगा, उसपे सब कुछ शो होने लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले पूरा कोड करेंगे, उसके बाद आप रन करेंगे, उसके बाद आपको रिज़ल्ट शो होंगे, ऐसा नहीं है, इतना वेट नहीं करना पड़ता फ्लटर में। फ्लटर में चीज़ें काफ़ी फ़ास्ट होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि आज के टाइम में कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं, जो फ्लटर का यूज़ कर रही हैं। तो बहुत सारी मेजर कंपनीज़ हैं, जैसे गूगल पे हम सभी यूज़ करते हैं, गूगल क्लासरूम हमने ऑनलाइन क्लासेस के दौरान तो कितना यूज़ किया था। और ड्रीम इलेवन के तो हम एड्स देख-देख करके ही थक चुके हैं, तो हमारे नाम इतने अच्छे से याद हो गया है। क्रेड के बारे में भी आप लोगों ने सुना ही होगा, कुणाल शाह के बारे में, बाइटडांस, पबजी मोबाइल, बीएमडब्ल्यू, राइव। सो इतनी सारी कंपनीज़ हैं जो आज फ्लटर को यूज़ कर रही हैं। स्पेशली ड्रीम इलेवन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ड्रीम इलेवन का जो रजिस्टर्ड यूज़र बेस था, जो एक्टिव यूज़र बेस था, वो एट अ टाइम 30 मिलियन यूज़र्स का था। पर उस टाइम उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एंड्रॉयड ऐप्स थे, क्योंकि उन्होंने जब वो एक स्टार्टअप था तो उनके पास इतना वो नहीं था कि वो एंड्रॉयड के लिए अलग डेवलपर्स को चूज़ करे, आईओएस के लिए अलग करे और वेबसाइट्स वो अपनी अलग बनाए। तो धीरे-धीरे जब 2020 में कोविड आया और फ्लटर का इतना अच्छा इमर्जिंग एक्सपेंशन होने लगा, तो इन लोगों ने क्या किया कि फ्लटर डेवलपर्स को हायर किया और अपना पूरा कोड बेस जो है वो फ्लटर में स्विच कर दिया। और आज की डेट में इनका जो यूज़र बेस है वो 60 मिलियन यूज़र्स का है। 60 मिलियन में से 50 मिलियन यूज़र्स जो हैं वो एक्टिव यूज़र्स हैं, जो पार्ट लेते हैं अराउंड द ग्लोब। सो अब मैं जो हमारे सेकंड स्पीकर हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हम अपने भी सिस्टम में, चाहे आपके पास विंडोज़ हो और मैकबुक हो, किस तरीके से हम फ्लटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। So thank you, Sudhanshu, for this amazing introduction. And uh, basically मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि इवेंट इंटरेक्टिव हो, अगर आप लोग अपना कैमरा और माइक ऑन करके थोड़ा यस, बहुत इंटरेक्ट कर सकते हो तो इट वुड बी वेरी गुड. सो
फर्स्ट ऑफ ऑल सुधांशु, मैं स्क्रीन शेयर करूं क्या? हाँ, एक सेकेंड। या सो सबसे पहले तो हम इधर आ जाते हैं। हमने देख लिया कि फ्लटर एक बेसिकली बहुत अमेजिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है। और एक छोटी सी चीज उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा जो सुधांशु ने शायद नहीं बोली, इज बेसिकली फ्लटर कैन मेक एप्स फॉर एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज, लिनक्स, macOS and web also. Okay. yes, So as we can see, we have like made projects in web and Android. These can also work on desktop environments. So Flutter would be a very good choice for someone who is just starting and wants to make some beginner projects, and even like super advanced projects are made using Flutter. But like you can make your MVPs and your basic projects to showcase in your resume using Flutter rather than web development, क्योंकि अभी क्या है कि हम लोग सब सिमिलर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। सब लोग वही ई कॉमर्स ऐप बनाएंगे, सब लोग वही मतलब बेसिक बेसिक प्रोजेक्ट बना के अपलोड कर देंगे अपने रेज्यूमे पे, अपने गिटहब पे। सो आई वुड से कि यूज फ्लटर टू मेक योर रेज्यूमे लुक गुड। And now I will start with like the installation part. So flutter.dev, this is the site जो आपकी best friend है during your journey learning the flutter, right? So first of all यहाँ पर ये हमारे पास docs होते हैं इसके flutter के। These docs are written the best. I've also read docs of React Native, React and other languages, but I found Flutter documentation to be one of the best in the world, right? So first we will start with the installation. So let's say कि we have Windows. We can install it on Mac OS, Linux and Chrome OS also. But today we'll be starting with Windows. So basic system requirements क्या रहती हैं Flutter की? एक तो PowerShell 5.0 या newer होना चाहिए आपके पास, which basically comes pre-installed in Windows 10. आजकल सबके पास Windows 10 है, तो we don't need to worry about this, right? Uh, can anybody like interact? सबको समझ आ रहा है ना? हेलो? यस सर। हाँ, बढ़िया। तो अब अच्छा, अब दूसरी चीज, सब लोग ने गिटहब के बारे में सुना है? हाँ, बढ़िया। तो अगर गिटहब के बारे में तुम लोगों ने सुना है, तो गिटहब यूजेस समथिंग कॉल्ड गिट, विच इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? यू वहां पर हम अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करके, सेग्रीगेट करके कोड को सेव कर सकते हैं, और ताकि अगर कोई एरर्स आ जाए नए कोड में तो हम रोल बैक कर सकें पुराने कोड की तरफ। तो फ्लटर के लिए गिट भी जरूरी है। गिट हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्लटर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में गिट का लिंक दिया हुआ है, एंड वी कैन डू द standalone installation for a 64-bit Windows setup, and you can get it for others also. And ये जब डाउनलोड हो जाएगा, you guys can install this, go through this setup. I have already done so I would not be going through this today. Then ये तो बेसिक रिकमेंडेशंस और रिक्वायरमेंट्स आ गई, ठीक है। अब मेन चीज आ जाती है फ्लटर की एसडीके। फ्लटर एसडीके बेसिकली जो फ्लटर बेसिकली एक एसडीके है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, which is based upon the language Dart. Dart is very similar to JavaScript, and you can say like C++. It supports both functional and object-oriented programming. So basically ये Flutter का पूरा सीन रहता है। तो ये डाउनलोड करेंगे हम सबसे पहले। तो ये डाउनलोड होने के बाद हमें बेसिकली एक जिप फाइल मिल जाएगी, एंड ये जिप फाइल को हम जाकर ये जिप फाइल है, जैसे सबको दिख रहा है ना? हेलो? आई गेस पता नहीं, कोई बोल नहीं रहा। चलो तो यहाँ पर आके हम फर्स्ट ऑफ ऑल सी ड्राइव में जाएंगे अपनी, और सजेस्ट क्या करता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, कि हम C/source/flutter में अपनी सारी फाइल्स रखें। जो भी फ्लटर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना, जो इंस्टॉल्ड होनी चाहिए आपके डेस्कटॉप में, वो यहाँ पे रहनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैंने एक सोर्स करके फोल्डर यहाँ बना रखा है ऑलरेडी।
ठीक है, इसमें एक फ्लटर करके फोल्डर होगा, यहाँ पर आपको ये वाली जो जिप डाउनलोड हुई है इसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद अब अगर आप सोचो कि स्क्रीन विजिबल नहीं है अभी, वाइट स्क्रीन आ रही है। ओ अच्छा ठीक है, सॉरी, आई गेस, एक सेकेंड। मैं वही पूछ रहा था कि दिख रहा है नहीं दिख रहा। सुधांशु कंफर्म करियो, अभी दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, अब दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास ना ये जिप डाउनलोड होके आ गई। ठीक है, अब ये जिप हम अपने सी ड्राइव में जाके एक सोर्स करके फोल्डर बनाएंगे। सबको ये सोर्स वाला फोल्डर दिख रहा है? हाँ हाँ, दिख रहा है। यार सब लोग अगर थोड़ा इंटरेक्ट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एंड वी कैन लर्न दिस सुपर गुड। हाँ बढ़िया, चलो इसमें लिख दिया, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अब सोर्स में जाके ये वाला फोल्डर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि बेसिकली खाली इतना करने से मैं फ्लटर पे एप्स बना लूंगा, तो इतना सिंपल नहीं है। बेसिकली अब फ्लटर के लिए तुम्हें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एडिट करने पड़ेंगे अपने। बेसिकली यहाँ पर भी लिखा हुआ है अपडेट योर पाथ, तो एडिट योर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ऑफ योर अकाउंट। इसके लिए सिंपल करो, अपना विंडोज बटन दबाओ, सर्च करो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ठीक है, ये करके खुल जाएगा। ठीक है, इधर जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाएंगे, एंड देन वी गो टू पाथ, देयर इज समथिंग कॉल्ड पाथ। ठीक है, अब इसमें हम एक न्यू एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पर न्यू पे क्लिक करके। अब हमें यहाँ डालना क्या है, हमें बेसिकली क्या डालना है, फ्लटर की ना जो हमने फोल्डर बनाया अभी, उसमें जो बिन फोल्डर था इसका पाथ कॉपी करके डालना है, दैट इज c/source/flutter/bin। ठीक है, अब बेसिकली ये हम जब इधर ऐड कर देंगे तो अब फ्लटर हमारे पूरे कंप्यूटर पे काम करेगी। ठीक है, अब ये यहाँ तो बोरिंग पार्ट खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं फ्लटर डॉक्टर पे। टर्मिनल कितने लोगों को पता है यहाँ पर क्या होता है? किसको किसको टर्मिनल पता है क्या होता है? चलो बढ़िया, बता सकता है टर्मिनल मतलब तूने कहाँ पर यूज करा है? गौरव माइक ऑन कर ले, कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा, तूने मतलब बेसिकली अभी छोटा प्रोजेक्ट बनाया तो उसके लिए टर्मिनल यूज करा, तो बस टर्मिनल यहाँ खोल लिया हमने। ठीक है, अब फ्लटर ऐसे लिखोगे ना, डैश डैश वर्जन, तो ये तुम्हें बता देगा कि अभी कौन सा फ्लटर का वर्जन इंस्टॉल्ड है। जैसे देखो यहाँ पर एक अपडेट आ रखा है, बट अभी हमने इंस्टॉल किया हुआ है 3.7.0। जो भी नया वर्जन होगा तुम लोग वही मोस्ट प्रोबेबली डाउनलोड करोगे, है ना? तो इसके बाद क्या करो, फ्लटर डॉक्टर, भाई जैसे डॉक्टर होता है ना अपना, वो बता देता है कि मरीज को क्या क्या प्रॉब्लम है, ये भी वही करेगी कमांड। अभी मेरे में सब कुछ टिक 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 आएगा क्योंकि मैंने पूरा सेटअप कर रखा है, बट तुम लोगों के में ना ये सारी चीजें, ये 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 सब चीजें ना वो आएंगी क्रॉस। ठीक है, और फ्लटर लाइसेंसेस करके एक चीज होती है जो तुम्हें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे इस कमांड से, फ्लटर डॉक्टर डैश डैश एंड्रॉइड लाइसेंसेस करके। ठीक है, इसके बाद ये एक्सेप्ट कर लोगे जब लाइसेंसेस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबको, अच्छा कितने लोगों को यहाँ पर पता है कि एंड्रॉइड एमुलेटर क्या होता है या एंड्रॉइड स्टूडियो क्या होता है? अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको पता है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो किसी ने डाउनलोड करा है अभी? हाँ, अच्छा, तो सबको पता होगा ना कि कितनी ज्यादा मेमोरी लेता है एंड्रॉइड स्टूडियो, और बिल्कुल बेकार सा है मतलब मेरे एक्सपीरियंस में। लेकिन फ्लटर चलाने के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो जरूरी है। ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो हम डाउनलोड कर लेंगे फ्रॉम दिस वेबसाइट, यहाँ पर जाके। ठीक है, अब ये 1 से 1.5 GB की फाइल होगी। ये डाउनलोड करने के बाद
तुम लोगों को इंस्टॉल करोगे तुम लोग, बेसिक सिंपल इंस्टॉलेशन है, बस नेक्स्ट 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 करते जाना है। उसके बाद तुम्हारे जब तुम खोलोगे एंड्रॉइड स्टूडियो तो तुम्हें ऐसा कुछ दिखेगा। जस्ट अ सेकेंड, सुधांशु एंड्रॉइड स्टूडियो दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। चल बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर जाके तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा, प्लगइन्स में जाना होगा। और क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड के लिए कॉन्फ़िगर्ड है आईडी, तो हम इसको फ्लटर के लिए कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। ऑल्दो वी आई वुड नॉट प्रेफर कि हम यूज करें ये वाली एक्सटेंशन। एक ये वाला प्लगइन डाउनलोड कर लो और एक डार्ट प्लगइन डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये तो तुम्हारा बेसिक सिस्टम हो गया फ्लटर को रन करने के लिए। बट अभी हमें एंड्रॉइड एमुलेटर भी चाहिए। तो फॉर एंड्रॉइड एमुलेटर व्हाट वी कैन डू इज, देयर इज अ हैमबर्गर मेन्यू हियर, वी कैन गो टू द वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। और जैसे तुम देख रहे हो यहाँ पे मैंने एमुलेटर्स बना रखे हैं, तो हम नया एमुलेटर बना सकते हैं क्रिएट डिवाइस करके। एंड यू कैन, मतलब यहाँ पर कुछ डिवाइसेस के ऑप्शंस हैं, तुम इसको डिवाइस को बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए जैसे मैं ले लेता हूँ, मैं पिक्सल एक्सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली नेक्स्ट कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पर तुम्हारे पास आएगा एंड्रॉयड वर्जन कौन सा चाहिए तुम्हें, जैसे तुम्हारे फोन में एंड्रॉयड 11, 12, 13, 10 जो भी है, यहाँ पर भी तुम ऐसे कोई भी डाल सकते हो। ट्राई करो कि जो लेटेस्ट है ना उससे एक पुराना डाल लो, ठीक है। और ऐसे डाउनलोड कर सकते हो, ये भी लगभग 500 MB या 800 MB के आसपास का डाउनलोड साइज है इसका। तो इसमें भी टाइम लगेगा। यू कैन डाउनलोड दिस, इट इज वेरी सिंपल, जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड एंड इट स्टार्ट्स ऑलरेडी, राइट। तो अभी हम जैसे एंड्रॉयड 12 कर लेते हैं, तो नेक्स्ट कर दो। अब ये सेटिंग्स है, यहाँ पर तुम अपने डिवाइस का कुछ भी नाम रख सकते हो, लेटर फॉरवर्ड डेमो, ठीक है। नाम ऐसे रख सकते हैं। अब ये एमुलेटर तुम्हारा फिनिश कर दोगे क्लिक, तो एमुलेटर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लॉन्च कर देते हैं एमुलेटर इस बटन की हेल्प से। अब देखो, अब जो बंदे पहली बार, कौन कौन पहली बार देख रहा है ऐसा होता है, किस किसने पहली बार देखा है ये? अच्छा, तो अभी देखना, ये तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर फोन चल जाएगा। मेरे मैं शायद इंट्रोडक्शन में बताना भूल गया, मैं सिविल इंजीनियरिंग में हूँ, DTU में। तो यहाँ पर लोग बहुत अमेज होते हैं जब मैं उनके सामने खोलता हूँ ना ये कि कंप्यूटर के अंदर फोन चल रहा है। चलो वो जो भी है, अब बेसिकली यहाँ पर हम इधर आ जाते हैं। अब ये एंड्रॉयड एमुलेटर जब चल जाएगा तुम्हारा, तो इसको तुम बंद कर सकते हो एंड्रॉयड स्टूडियो को, क्योंकि रैम बहुत खाता है। अब हम वापस अपने टर्मिनल पे आ जाते हैं सबसे पहले, जब तक ये स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर हम, अब हमें देख लिया कि भाई इसके बाद ना जब तुम दोबारा से ये कमांड रन करोगे फ्लटर डॉक्टर, तो यहाँ ना सब कुछ टिक 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 आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइसेस भी आ जाएंगे। बेसिकली ये कनेक्टेड डिवाइस है यहाँ पर। अभी जब भी ये स्टार्ट हो जाएगा तो हम देख लेंगे इसको। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ऐप बनाएंगे अपनी, ठीक है। सुधांशु, क्या हमारे पास टाइम है, हम ऐप बनाने का भी कर सकते हैं साथ में? आई थिंक हमें पहले अपने प्रोजेक्ट शो कर देने चाहिए, उसके बाद अच्छा हम अच्छा अच्छा एक अच्छा, बार रन समझ कर गया लेते मैं। तो एक मिनट रुको, जब तक ये सब स्टार्ट हो रहा है मैं तुम्हें एक बड़ी मस्त चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर सबको दिख रही है, PPT दिख रही है सबको? हाँ विजिबल है। हाँ, दिख रही हाँ, भैया। बढ़िया। तो यहाँ पर देखो तुम, ये एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है। अब सारे लोगों ने बताया होगा तुम्हें कि यार वेब डेवलपमेंट कर लो, वेब डी आसान होती है, किसी भी कंप्यूटर पे चल जाता है और मतलब सारा सिस्टम हो जाता है। मैं ये प्रोजेक्ट बता रहा हूँ जब तक ये एंड्रॉइड एमुलेटर अच्छे स्टार्ट हो गया। चलो सुधांशु एक मिनट रुक जा, मैं VS कोड का भी बता देता हूँ इन लोगों को। VS कोड हाँ के बारे में कितने लोगों ने सुना है? बढ़िया। बहुत यूज किया है। हाँ, VS कोड तो सबने यूज करा होगा, और सबकी फेवरेट आईडी मेरे हिसाब से या टेक्स्ट एडिटर VS कोड ही होता है। तो अगर मैं जैसे अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट का कोड खोल देता हूँ ये दिख रहा है सबको? यस। अच्छा बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब देखो यहाँ तो मैं बहुत सारी फाइल दिख रही होंगी, काफी सारा कोड दिख रहा होगा।
इससे डरो मत, ठीक है। ये बिल्कुल सब कुछ इजी इजी है, इस वाले प्रोजेक्ट में कुछ भी टफ नहीं था। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि तुम्हें करना क्या है। जब तुम VS कोड खोलोगे ना, तो तुम्हें सबको एक्सटेंशंस के बारे में ऑलरेडी पता होगा मेरे हिसाब से। कितनों को एक्सटेंशन के बारे में पता है, क्या होती है एक्सटेंशन? बहुत बढ़िया। और स्पैम करो भाई, हाथ हाथ ऊपर रखो सब। हाँ बहुत बढ़िया। चलो आप सही। सभी अपना माइक यूज कर सकते हैं। हाँ माइक यूज करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी कम लोग आए हैं, तो जितना इंटरेक्टिव होगा उतना तुम लोगों का फायदा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जाके ना फ्लटर सर्च कर लो, ठीक है। अब वैसे बाकी लोग क्या करते हैं भाई, फ्लटर डार्ट पहले करो, तुम सीधा इधर जाओ, ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो, ठीक है। इसके बाद ये डार्ट वाली एक्सटेंशन अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी, नहीं होगी तो कर लेना, ठीक है। और मैं तुम्हें क्या रिकमेंड करूंगा, फ्लटर फाइल्स ये वाली एक्सटेंशन, ये वाली, ये जरूर कर लेना इंस्टॉल, या आगे तुम्हें काम आएगी, मतलब ये वाली एक्सटेंशन। अच्छा, ये सब करने के बाद हमारा पूरा सेटअप कंप्लीट है। अब हम टर्मिनल चाहे तो बंद कर सकते हैं, और बेसिकली इस प्रोजेक्ट को भी मैं एक बार को बंद ही कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। मैं सबसे पहले पोर्टफोलियो वेबसाइट दिखाता हूँ तुम्हें, क्योंकि मुझे पर्सनली क्या लगता है, किसी भी डेवलपर को, अगर तुम डेवलप कर रहे हो कुछ भी, चाहे वेबसाइट हो, चाहे ऐप हो, चाहे कोई ML की चीज हो, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होनी चाहिए सुंदर सी दिखने वाली। अब वो कितनी सुंदर है मेरी, वो तुम लोग बताना, बट ये मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है बेसिकली, ठीक है। दिस इज कम्प्लीटली मेड इन फ्लटर, फ्लटर वेब। और यहाँ पर लाइट मोड, डार्क मोड, जो फैंसी टर्म्स होती हैं वो सब है। ये एनिमेशन है पीछे, दिस बटन्स आर रिस्पॉन्सिव, दिस इज रिस्पॉन्सिव, राइट। और ये प्रोजेक्ट सेक्शन है मेरा, ये मैंने एक्चुअली अभी जस्ट कल ही मैंने इसको फटाफट बनाया है, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन दिस, इसका डिजाइन मैं बेटर करूंगा। तो ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। सब लोग अपना पहला प्रोजेक्ट एक पोर्टफोलियो ऐप या पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना, ठीक है। कितने लोगों ने अभी तक वेबसाइट बनाई है और उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया है, ये बताओ। मैंने एक बार ट्राई किया था। अच्छा भैया मैंने वो HTML CSS से करा था। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। HTML CSS से बहुत बढ़िया चीज बन सकती है, बट जावास्क्रिप्ट भी तुम यूज करोगे आगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा। बट मैं तुम्हें इससे भी शॉर्टकट बताता हूँ। तुम क्या करो, फ्लटर की ऐप बनाओ एक, ठीक है। उसमें, अच्छा उसके बारे में हम बात करते हैं अभी, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस पे। अब इसमें मेरा रेज्यूमे भी है, ठीक है। हर हर बंदे को अपना रेज्यूमे बनाना होता है, सबको पता है रेज्यूमे बनाना होता है इधर, बताओ बताओ। हाँ यस। पता है। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ भैया। तो रेज्यूमे तो तुम्हें बनाना ही है। अब रेज्यूमे भाई तुम सबको क्या ईमेल पे भेजते रहोगे सारा टाइम, या रैंडम लोगों को कैसे पता चलेगा तुम्हारे रेज्यूमे के बारे में? तुम्हारा लिंक्डइन, मैक्सिमम लिंक्डइन कितनों ने बनाया यहाँ पे? प्रोफाइल है। प्रोफाइल है बट अभी एक्टिव नहीं होंगे। तो बेसिकली लिंक्डइन पे तुम, सुधांशु तो बहुत एक्टिव है, रोज रोज अपलोड कर, रोज कुछ ना कुछ पोस्ट करता है भाई, बहुत बढ़िया। बट हाँ मैंने देखा है, रेज्यूमे, Day 20 डालते हैं भैया। हाँ रोज डालते हैं भाई, बहुत बढ़िया। तो अभी क्या है कि तुम्हें रेज्यूमे चाहिए। अब रेज्यूमे क्या करो, मेरे मानने से अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट पर डाल दो, ठीक है। अब सबको ये वेबसाइट का लिंक दे दो, कोई बढ़िया सा अपना वेबसाइट का नाम रख लो, ठीक है, और लिंक दे दो उसको, ठीक है। ये तो हो गई पोर्टफोलियो वेबसाइट मेरी। अब इसके बाद में एक तुम्हें, अभी रिसेंटली मैंने एक गूगल डॉक्स का क्लोन बनाया था, मैं वो उसके बारे में तुम्हें बताना चाहूंगा। सब लोगों को गिटहब के बारे में पता है ना? हाँ हाँ भैया भैया। पता है। हाँ पता है गिटहब भैया। से क्लोन करना आता है तुम्हें प्रोजेक्ट्स को? अगर क्लोन करना नहीं नहीं आता, आता। मतलब कॉपी करना नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे आने वाले सेशन में ये सब चीजें कवर कर देंगे अच्छे से, ठीक है। फॉर नाउ मैं एक वीडियो चला देता हूँ तुम्हारे लिए। ये मैंने बनाया था लास्ट में भी 2 मंथ्स बैक, ठीक है। ये एंड्रॉयड ऐप है और ये गूगल डॉक्स का क्लोन है। सबसे पहले तो हम गूगल साइन इन कर लेंगे, ठीक है।
ये तुम्हारा सिंपल गूगल साइन इन हो गया। नया डॉक्यूमेंट तुम बना सकते हो, ठीक है। इधर तुम जो भी लिखना है लिखो, स्टाइलिंग करनी है स्टाइलिंग करो। काफी सारे फीचर्स इसमें मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी थी। ऑल्दो फुल फ्लेजेड तो नहीं है ये, बट दिस इज लाइक सुपर क्लोज टू द रियल थिंग, राइट? सब लोग देख पा रहे हैं ना वीडियो? हाँ भैया। visible। हाँ, तो अब इसके बाद अच्छा, अब तुम कहोगे यार फ्लटर तो चलो मैंने ऐप बना ली, बट कुछ ऐसा दिखाओ कि रियल लाइफ बढ़िया सी वेबसाइट, इंटरेक्टिव भी हो, दो लोग इकट्ठे भी यूज कर सके, वो बताओ मेरे को। तो मेरे पास ना यही वाली ऐप का साथ में मैंने वेबसाइट का कोड भी बना दिया। सेम कोड है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा इसमें, समझ रहे हो? मैंने एक ही कोड से एंड्रॉइड की ऐप भी बनाई और वेबसाइट भी बनाई, और उसका तुम्हारे पास लाइव डेमो है। अब देखना यहाँ पर मैं एक डॉक्यूमेंट में चेंजेस करूंगा तो दूसरे डॉक्यूमेंट में भी अपने आप चेंजेस होंगे। यहाँ पर भी मैंने सेम डॉक्यूमेंट खोल लिया लिंक शेयर करके। अब यहाँ देखना चेंजेस कैसे होंगे। ये चेंजेस देखो साथ में हो रहे हैं, देख सक रहे हो? हेलो? हाँ भैया। हाँ भैया हाँ, दिख रहा है। तो मतलब तुम ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो फ्लटर यूज करके, जो एक्चुअल में गूगल डॉक्स पे तुम रियल टाइम अपडेट देखते हो ना अपने डॉक्यूमेंट के, फ्लटर में मैं वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया मेरा एक प्रोजेक्ट। इसके बारे में अगर तुम्हें पढ़ना है तो ये मैं पीपीटी तुम्हें शेयर कर दूंगा, इस पे गिटहब का लिंक होगा। ये लिंक पे जाके तुम कैसे इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या है, और दूसरा इसका कोड अगर तुम आगे समझना चाहो तो यहाँ से समझ सकते हो, नहीं तो मेरे को डीएम करके भी पूछ सकते हो। इसके बाद मैंने शायद ये गूगल डॉक्स थोड़ा सा अंडरवेलमिंग था, बट मैं तुम्हें इससे थोड़ा सा तुम्हारा और रिलेट करोगे वो वाला प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। अब इसकी ऐप मैं चलाने बैठूंगा तो बहुत देर लग जाएगी, बट अभी के लिए लेट मी जस्ट शो यू सम स्क्रीनशॉट। ये व्हाट्सएप का क्लोन बनाया था मैंने। व्हाट्सएप तो सब लोग यूज करते ही है ना, तो बेसिकली ऐसी स्क्रीन आती है पहले कुछ, फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे तुम अपना फोन नंबर वगैरह डालते हो, उसके बाद तुम नेक्स्ट करते हो, ओटीपी आ जाता है, और फिर तुम अपना ये नाम और इमेज वगैरह ऐड कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद तुम्हारी चैट स्क्रीन खुल जाती है। अब इसमें चैट भी चलती है, कॉल्स भी चलती है। स्टेटस का मैंने इसमें कॉन्फ़िगर नहीं किया था, बट चैट और कॉल्स इसमें चलती है। इसके बाद इसमें सबसे बढ़िया चीज है, ये क्या है, ये तो छोड़ो। यहाँ पर तुम जिफ्स भी डाल सकते हो, मतलब फ्लटर में तुम जिफ्स भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और तुम इसमें इवन मैंने वॉइस मैसेजेस भी इम्प्लीमेंट करे हैं, अगर तुम देख सकते हो, ठीक है। रिप्लाई वाला फीचर भी है, यहाँ पर रिप्लाई देखो, ये रिप्लाई वाला फीचर भी है इसके अंदर, और इमोजीज भी हैं। तो बेसिकली फ्लटर, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि फ्लटर, कुछ लोग तुम्हें कहेंगे कि फ्लटर अभी नई टेक्नोलॉजी है, या थोड़ी सी रिसोर्सेस कम है, या क्या है, बट मैं तुम्हें बताता हूँ। सुधांशु ने शायद शायद बोला था स्टार्टिंग में कि फ्लटर इज अबाउट लॉन्च इन 2020, बट ऑफिशियल रिलीज में ना फ्लटर 2016 में ही आ गई थी। पहले फ्लटर का नाम होता था स्काई इंजन करके, ठीक है। गूगल ने उसे एक्वायर किया था 2017-18 के टाइम पे, एंड फ्लटर वाज रीब्रांडेड एज फ्लटर इन 2017, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट सिंस देन। ऑल्दो रिएक्ट नेटिव इज वेरी ओल्ड एंड लेगेसी, बट आज की डेट में सारी कंपनियां डेवलपमेंट साइड पे फ्लटर पे अपनी एप्स पोर्ट कर रही है, स्विच कर रही है, ठीक है। क्योंकि फ्लटर बहुत तेज है, डेवलपर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तुम जब यूज करने लगोगे तो मैं समझ आएगा कि वेब डेवलपमेंट से फार फार बेटर है, बट स्टिल मैं कहूंगा कि वेब डेवलपमेंट के पास कुछ एडवांटेजेस हैं जो नहीं है फ्लटर के पास वेब की साइड में, बट फ्लटर इज सुपर ऑसम टू मेक एप्स फास्ट। अब इसके बाद मैं सुधांशु को हैंड ओवर करूंगा। मैं कुछ ज्यादा ही बोल लिया शायद, बट सुधांशु अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दे यार। हाँ श्योर। स्क्रीन विजिबल है ना? यस। ओके, सो अब मैं आपको अपना पर्सनल पोर्टफोलियो ऐप दिखाता हूँ।
क्योंकि पोर्टफोलियो ऐप तो हर डेवलपर की एक ख्वाहिश टाइप होती है ना कि हाँ, मेरा भी एक पोर्टफोलियो ऐप हो। स्पेशली जब आप लोग लिंक्डइन पे हैं, तो आप देखते ही होंगे सब अपना पोर्टफोलियो शो करते होंगे वहाँ पे। तो जिन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं भी करी होती है, उनको भी सी प्लस प्लस करते दौरान भी एक बार मन में तो ज़रूर आता है कि हाँ, मेरी भी खुद की वेबसाइट हो, जो मैं भी अपने घर के फैमिली ग्रुप में उसका लिंक भेजूँ और सब देखें कि हाँ, ये मेरी वेबसाइट है। तो मेरा भी एक यही मोटिव था बनाने का पोर्टफोलियो ऐप। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, तो बेसिकली मैं इंजीनियरिंग फिज़िक्स ब्रांच में हूँ, तो मैं फर्स्ट ईयर में जब आया था, तो मैंने स्टार्ट अपनी जर्नी वेब डेवलपमेंट से की थी। पर लेटर ऑन जब मैंने फ्लटर को एक्सप्लोर किया, तो उसके बाद मैंने मुड़ के कभी वेब डेवलपमेंट को देखा भी नहीं। और जब मैं फ्लटर से इतने अच्छे ऐप्स बना सकता हूँ, तो फिर मैं क्यों ही वेब डेवलपमेंट को सीखूँ, जबकि हर बच्चा वही सीख रहा है। तो ये मेरा पोर्टफोलियो ऐप है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एनिमेटेड टेक्स्ट शो हो रहा है, मेरा नाम और मोबाइल डेवलपर एनिमेशन में शो हो रहा है और ये डार्क मोड, लाइट मोड दोनों हम कर सकते हैं। ये सारे मेरे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। ये रेटिंग ऐप है, मूवीज़ रेटिंग ऐप, चैट जीपीटी का तो नाम सुन-सुन के आप लोग अब थक चुके होंगे। तो उसका भी एक क्लोन टाइप मैंने बनाया था और एक ये चैटिंग ऐप बनाई थी, एक टेक न्यूज़ ऐप जिसमें रियल टाइम इंडियन टेक न्यूज़ शो होती है। इंटरनेशनल नहीं, सिर्फ़ इंडियन शो होती है और इसमें हमारे ये एपीआई को कॉल करके हमने बनाया था और इसमें हम किसी भी तरीके की न्यूज़ को शो कर सकते हैं, कैटेगरीज़ को सेट कर सकते हैं। एक ये शॉपिंग ऐप जो ई-कॉमर्स ऐप एक होती है ना, जो सब बनाते हैं, वो एक मैंने भी बनाई। फिर उसके बाद ये कोविड-19 ऐप, ये एक्सपेंस नोटर ऐप और यहाँ पे हम अपनी स्किल शो कर रखी है मैंने फ्लटर, डार्ट, फायरबेस, सी प्लस प्लस। यहाँ पे अबाउट सेक्शन में अपने बारे में मैंने बता रखा है और उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल दे रखी है, फ़ोन नंबर और किसी को भी मेरा रिज़्यूमे डाउनलोड करना है, तो वो यहाँ से क्लिक करके कर सकता है। ये डाउनलोड हो गया रिज़्यूमे और इसके बाद यहाँ पे मेरी जो सबसे अभी लेटेस्ट मैंने इसमें ऐड किया, वो किया है ये ईमेल भेजने का ऑप्शन क्योंकि आपसे कोई कनेक्ट होगा तो ज़रूरी नहीं है ना वो आपको फ़ोन ही करेगा, वो आपको मेल ही करना चाहेगा और तो इसमें एक ऑप्शन मैंने ये ऐड किया कि मान लो अगर कोई आता है और वो ज़बरदस्ती आके सेंड बटन पे दबाने लग जाए बार-बार कि हमें तो भेजना ही है, जबकि उसने कुछ एंटर नहीं कर रखा। तो उसके लिए हम आगे वाले सेशंस में आपको बताएँगे कि इस तरीके की वैलिडेशंस को कैसे ऐड करें, कि ये लिखा है नीचे प्लीज़ एंटर योर नेम, योर ईमेल, योर मैसेज इस तरीके की सभी चीज़ों को हम देखेंगे और ये आपको देख कर के लग रहा होगा, हो सकता है कि काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी टाइम लगा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप धीरे-धीरे आपके कॉन्सेप्ट्स हमारे सभी सेशंस में अगर आप आएँगे, तो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे कि आप ये मुश्किल से 2 दिन में आप ये पूरा ऐसा अपना खुद का बना सकते हैं। पूरा ऐसा खुद से बना लेंगे आप, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और उसके बाद मेरा जो एक सेकंड ऐप है, वो है कोविड-19 वाला। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके की एनिमेशन शो होती है इसमें, चार्ट भी जो है वो एनिमेशन में शो होता है और यहाँ पे जो है ये रियल टाइम डेटा है, कि टोटल डेथ्स कितनी है, रिकवर्ड कितने हुए हैं, टोटल केसेस क्या रहे हैं और यहाँ पे फिर एक ये ऑप्शन है कि हम कंट्रीज़ को ट्रैक कर सकते हैं कि किस-किस कंट्री में कितने केसेस हैं। लेट्स सपोज़ जैसे मैं देखता हूँ चाइना, चाइना में टोटल केसेस चाइना तो कितने हैं मत तो चाइना चाइना तो मत देख, कोई और देख ले। सो लेट्स सपोज़ हम इंडिया ही देखते हैं, किसी और को क्यों देखें। सो टोटल केसेस कितने हैं, इतने हैं और ये रिकवर्ड आपको लिख रहा होगा कि ये 0 क्यों है? तो ये आज की डेट का रियल टाइम डेटा है, इसलिए 0 है और ये 0 ही हो तो अच्छा है, डेथ्स भी 0 ही होनी चाहिए, सब 0 ही होना चाहिए वैसे तो। तो ये आप इस तरीके का ऐप भी आप हार्डली 1 या 2 दिन में पूरा बना सकते हैं। और आप लोग ज़्यादा भी बोर ना हो हमारे प्रोजेक्ट्स देख-देख करके, बाकी जो लोग मुझे लिंक्डइन पे फ़ॉलो करते हैं, उन्होंने तो देखा ही होगा कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं और धीरे-धीरे अब और भी मैं बनाता जा रहा हूँ। 100 डेज़ का मैंने चैलेंज लिया है कि 100 डेज़ में लगभग-लगभग फ्लटर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी को मैं कवर करूँगा और लिंक्डइन पे शेयर भी करूँगा। अब मैंने रिसोर्सेज़ शेयर करना भी स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग फ़ॉलो कर सकते हैं ताकि आप लोगों को भी एक ढूँढना ना पड़े बेसिकली यूट्यूब पे जा कर के इतना टाइम तो हम लोग वेस्ट कर देते हैं ढूँढने में ही कि सही रिसोर्स क्या है, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से देखें। हम अपने सेशंस में इस तरीके की सभी चीज़ों को बताएँगे आपको कि आपको कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है।
ना उससे ज़्यादा देखनी है चीज़ें, ना उससे कम देखनी है चीज़ें। हाँ, मैं लिंक्डइन प्रोफ़ाइल अपनी शेयर कर देता हूँ। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, सुधांशु ने बोला ना कि रिसोर्सेज की बात, मैं इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करता हूँ। यार अगर हम लोगों ने मतलब यूट्यूब पूरा खंगाल मारा है फ्लटर से, पूरा गिटहब देख मारा है, तो अब आज की डेट में हमें पता है कि कौन से रिसोर्सेज अच्छे हैं, कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जहां जाके तुम चीजें जल्दी सीख पाओगे। कितना सीखना है इसका कोई एंड नहीं है। ऐप डेवलपमेंट इज लाइक कुकिंग, हुँ, समझ रहे हो? इट विल नेवर एंड फॉर यू। इवन डेवलपमेंट इज लाइक कुकिंग। हुँ, आज तुम बनाना सीखते हो अगर पोर्टफोलियो ऐप अपनी, या काउंटर ऐप तुमने जैसे स्टार्ट करी, तुमने उसमें एक एक चीज ऐड करते गए। हम अपने प्रोजेक्ट्स में, सुधांशु इस चीज का बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो अपने प्रोजेक्ट्स में रोज कुछ ना कुछ ऐड करता है, ठीक है? तो वो शेयर भी करता है वो चीज अपने 100 डेज वाले चैलेंज में। तो बेसिकली तुम रोज कुछ नया सीखोगे, रोज कुछ नया इंप्लीमेंट करोगे, एंड इन दी एंड यू कैन नेवर से कि तुमने मास्टर कर लिया फ्लटर। ये हुँ। इवन वेब डेवलपमेंट। हाँ, रिसोर्सेज लिंक्डइन पे तुम मेरे को भी डीएम कर सकते हो। मैं तो भाई हाँ, देखो, मैं लिंक्डइन विंक्डइन शेयर नहीं करता, मैं तो बस ये शेयर करता हूँ, tormije.me। इस पे आके मेरे को सर्च कर लेना अपने आप, जिसको ढूंढना होगा अपने आप आ जाना, और मैसेज कर देना, हाँ। रिप्लाई दे दूंगा तुम्हें। हाँ, और रिसोर्सेज़ की आप चिंता मत कीजिए, आपको जिस भी तरीके से आप हमारे साथ कनेक्ट होने में कंफर्टेबल हो, आप उस तरीके से कर सकते हैं। और हमने क्योंकि काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया है, तो हमें पता है कि किस टॉपिक के लिए कहाँ से पढ़ना है और कितना टाइम स्पेंड करना है उस चीज़ पे। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि यही नहीं समझ आता था कि कहाँ से देखूँ, क्या चीज़ें करूँ। हालाँकि उस चीज़ का अपना एक बेनिफिट है, आप उस केस में ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, ज़्यादा नॉलेज होती है आपको। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी पता चल जाती हैं आपको, बट स्टिल अब क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट भी बहुत होता है, कॉलेज से ही टाइम नहीं मिलता, असाइनमेंट है, एग्ज़ाम्स है, हर थोड़े टाइम बाद तो मिड टर्म आ जाते हैं, एंड टर्म आ जाते हैं, कभी फिर कोई मैम बोलेंगी फाइल चेक कर तुम्हारी कंप्लीट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर उसके बाद हमें एक्चुअल में पता चलता है एट द एंड हम कोई हाँ, वो कोर्स भी अच्छा है बट उससे भी अच्छे बिगिनर फ्रेंडली जो कोर्सेज़ है ना, हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। तो ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम क्या देख रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा फ़ील नहीं होना चाहिए। और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि आप हमारे सेशंस में आएँगे ना, तो आपका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स तक भी आप हमारे साथ खुद इम्प्लीमेंट करते हुए साइड बाय साइड कोड करेंगे हम भी, तो आपके लिए वो भी सही रहेगा। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट तो करेंगे नहीं आपका कि यहाँ पे कोई ऐड चला कर के आपका टाइम वेस्ट होगा, ऐसा कुछ भी हाँ, नहीं होगा। और ये चीज़ें दूसरी जगह तो होंगी प्रमोशंस, ऐड वगैरह। और हमें मेन चीज़ तो यही है कि हमें कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करनी है और अच्छे से करनी है। एक मैं तो छोटी सी चीज कोर्सेज़ हम और शेयर बोलता हूँ कि ऐसे समझो कि अगर फ्लटर में तुम्हें जाके यूट्यूब पे कोई भी रिसोर्स मिल भी गया, मान लो अच्छा सा रिसोर्स हुँ, तुमने ढूंढ लिया, एक बात तुम्हें बाद में समझ आएगी कि कॉपी करना भी ना एक बहुत बड़ी कला है डेवलपमेंट में। क्योंकि कॉपी करने के बाद तुम्हें 50 तरीके के एरर मिलेंगे अपने प्रोजेक्ट में, जो तुम्हें खुद सॉल्व करने पड़ेंगे, और वही तुम्हारी लर्निंग होगी। कॉपी करना गलत नहीं है, कॉपी करो, हाँ, यूट्यूब के ट्यूटोरियल देख देख के कॉपी करो, 20 प्रोजेक्ट वैसे बनाओ। गिटहब पे हमारी 20-20 30-30 रिपॉजिटरीज बन चुकी हैं ऐसे ही कर करके। तुम लोगों को हाँ, हमसे डायरेक्ट पूछना चाहिए कि कौन से प्रोजेक्ट्स हम बनाएं। मैं तो बोलूंगा, अच्छा एक छोटी सी चीज वैसे सुधांशु, मैं तेरे को रोकना चाहूंगा। मैं बेसिकली हुँ, हुँ, मैंने इनको फ्लटर क्रिएट ऐप करके दिखाया ही नहीं, मैं वो स्किप कर गया पूरी चीज। बट थोड़ा हाँ, सा बोरिंग हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक बारी देख लो ये, ठीक है? कितने लोग हाँ। देखना चाहते हैं कि फ्लटर क्रिएट ऐप कैसे काम करता है? हाँ भैया, दिखा दो। हाँ, तो मैं एक बारी स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ भैया, दिख रही है। हाँ, तो सबसे पहले टर्मिनल खोल दो अपना। अब ये टर्मिनल में क्या सीन रहता है? सिंपल कमांड है, फ्लटर क्रिएट। क्या नाम रखूं अपने आप का, बताओ, जो नाम बोलोगे वो रखूंगा। कुछ फटाफट नाम बता दो यार, ये तो मैं तो ऐसे ही रख लूंगा छोटा सा। चलो इसी से कंटिन्यू करते हैं। ये करते ही तुम्हारा एक प्रोजेक्ट बन जाएगा।
अब देखो तुमने यहाँ देखा होगा एक फोल्डर बन के आ गया माई ऐप के नाम से, देख रहे हो? दिख रहा है सबको फोल्डर? हाँ किसी दिख रहा है हाँ भैया। दिख रहा है भैया। अब इस फोल्डर में हम चले जाएंगे, फोल्डर में हम आ गए। अब मैं यहाँ पर VS कोड खोल लेता हूँ। ये VS कोड खोलने की शॉर्टकट है कोड डॉट, ये कॉन्फ़िगर कर सकते हो तुम लोग भी, ये भी बाद में हम इसके बारे में देखेंगे। तो देखो अभी तुम्हें यहाँ बहुत सारी फाइलें दिख रही होंगी, हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, हमें इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना, इन सब में कुछ नहीं देखना, हमें जाना है लिब में, ठीक है? और इसके अंदर एक मेन डॉट डार्ट करके फाइल है, इसको खोलना है। ओ तेरी, बहुत सारा कोड आ गया, कोई बात नहीं, इस कोड को हम पूरा डिलीट कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है? और एक दूसरी फाइल जो इंपॉर्टेंट होती है जिसके बारे में हम बाद भी बात करेंगे, pubspec.yaml, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बस इस ऐप पे आ जाते हैं। अच्छा, एक Ctrl+Z डिलीट करने से पहले मैं ये ऐप तुम्हें चला के दिखाता हूँ। Ctrl+F5 से या यहाँ से जाके तुम स्टार्ट विदाउट डीबगिंग करके ऐप चला सकते हो अपनी। डीबगिंग बेसिकली एरर्स फाइंड आउट करने के लिए होता है। अभी हम थोड़ा जल्दी में है तो हम ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं। अभी सुधांशु टाइम है हमारे पास क्या? हाँ अभी है 10-15 मिनट है। हाँ, तो मैं डाउट्स वगैरह बच्चों के लेने से पहले मैं ये चला के हाँ एक जरूर बार ऐप दिखाना दिखा चाहूंगा। देते हैं। हाँ, तो अब देखना यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मतलब थोड़ा रिसोर्स हंग्री है ये फ्लटर, वेब डेवलपमेंट से ज्यादा है बट नेटिव ऐप डेवलपमेंट से कम है। और जब तक ये बिल्ड हो रहा है मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज और बताता हूँ। अभी मैं इंटर्न कर रहा हूँ जहाँ पर कुछ पूछना है क्या भाई? विभूत दाता पटनायक, इसने हैंड रेस माइक करा ऑन हुआ। करके पूछ लो। हाँ पूछ ले भाई, कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मैं बेसिकली ये बता रहा था कि फ्लटर मैंने जब इंटर्न ज्वाइन करी थी मुझे पता नहीं था मैं किस टेक्नोलॉजी में काम करूंगा, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी माय वर्स्ट नाइटमेयर, दैट इज रिएक्ट एंड वेब डेवलपमेंट। मुझे बहुत डर लगता है वेब डेवलपमेंट से, मैं आज भी प्रेफर नहीं करता वेब डेवलपमेंट, ठीक है? मैं आज भी ऐप और फ्लटर ही प्रेफर करता हूँ। बट अब जब तुम जाते हो नई टेक्नोलॉजी से तुम्हें काम करना पड़ता है, तुम्हें पता चलता है, कंपैरेटिव स्टडी समझ आती है तुम्हें। ये एक्सपीरियंस तुम्हें थोड़ा बाद में मिलेगा जब तुम कहीं इंटर्न कर रहे होगे या किसी टीम में काम कर रहे होगे, कॉलेज में हैकाथॉन्स में जा रहे होगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि बाकी टेक्नोलॉजीज में डेवलपर एक्सपीरियंस सब लोग समझते हैं यहाँ पे वर्ड का मतलब। होता क्या है? नहीं भैया। देख, डेवलपर एक्सपीरियंस क्या होता है कि तुम जब कोड कर रहे होते हो ना, तो तुम्हारे को कितना इजी लग रहा है कोड करना, चीजें इंप्लीमेंट करना कितना इजी लग रहा है, कितनी जल्दी तुम चीजें बिल्ड कर पा रहे हो। फ्लटर का डेवलपर एक्सपीरियंस या शॉर्ट फॉर्म में DX बोलते हैं, वो तुम बहुत अच्छे से कर सकते, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब मैं बता रहा हूँ। अब रिएक्ट नेटिव में मैंने स्टार्ट करा, मुझे इतना मुश्किल हुआ, आज मैंने कन्विंस कर करके अपने स्टार्टअप को, अपनी जहां मैं इंटर्न कर रहा हूँ, अपने मैनेजर को कन्विंस कर दिया कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम फ्लटर यूज करेंगे, एंड ही इज नाउ कन्विंस्ड टू यूज फ्लटर, राइट? तो वो बहुत बढ़िया चीज है फ्लटर। आगे और तुम देखोगे और पॉपुलर होगी, ऐप डेवलपमेंट कॉलेजेस में भी और पॉपुलर होगी। और हम मैं और सुधांशु जैसे लोग या वरिन भैया हैं हमारे साथ, हम लोग शुरू से इसी चीज में बिलीव करते हैं कि हमें तो फ्लटर को थोड़ा आगे लेके जाना है। मैं तो GDSC मैंने ज्वाइन भी इसलिए किया कि आई वांटेड टू गिव बैक टू द कम्युनिटी एंड टीच मोर पीपल अबाउट फ्लटर। दिस इज अ फर्स्ट इवेंट, बट हम श्योरली वी आर हैविंग एन इवेंट ऑन 16th आल्सो, तब भी तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये ऐप बिल्ड होगी। अच्छा, तो आ जाओ। अब देखो भाई, ये बढ़िया चीज है, सबको यही देख के अच्छा लगता है ये। अब देखो, ये काउंटर ऐप है, बेसिक ऐप होती है जो फ्लटर की बाय डिफॉल्ट बन के आती है। इस पे तुम क्लिक करोगे, ये चीजें होती जाएंगी, ठीक है? सबसे बढ़िया चीज, ये स्टेट अपडेट हो रही है। स्टेट भी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी हम क्या करते हैं, इसको उड़ा देते हैं। अब देखो एरर आ जाएगा, एरर आ गया, ठीक है? सबसे पहले हमें, भाई जैसे तुम C++ में वो क्या HTL क्या होता है, मेरे को पता नहीं यार, मैंने बहुत टाइम से करी नहीं C++, क्या होता है बताना जरा, क्या इंपोर्ट करते हो ऊपर? आयो स्ट्रीम। हाँ, आईओ स्ट्रीम, वो जैसे वो इंपोर्ट करते हो ना, हाँ, तो वैसे ही हमने यहाँ पे मटेरियल डॉट डार्ट इंपोर्ट कर लिया, ठीक है? इसके बाद हम एक स्टेट, हम पहले मेन बनाते हैं, जैसे मेन फंक्शन सब लोग
सबको पता होगा कि मेन फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, पता है सबको? इंट मेन देखते होगे ना आप लोग C++ में। हाँ बस आप बस बस उसके जैसे ही है मेरे को। मतलब देखो, अगर तुम लोग C++ के बैकग्राउंड से आ रहे हो तो मैं उससे थोड़ा रिलेट करके बताऊंगा, अगर तुम जावा के बैकग्राउंड से आ रहे हो तो उससे रिलेट करके बताऊंगा। बताओ किससे बताऊं? भैया मेरे स्कूल में तो पाइथन थी और अच्छा यहाँ पे पाइथन सी थी, चल रही है। तो भाई तेरे को तो बहुत दिक्कत आ रही होगी। हाँ पाइथन मतलब थोड़ा सा पता है C++ कौन सी ब्रांच में समर तू? ईपी में। अच्छा ईपी में, अच्छा ये तो सीनियर इंजीनियर। तुम्हारे बैठे हैं सामने। बढ़िया बढ़िया। सिविल का तो कोई नहीं आया होगा इधर प्रॉब्ली, कोई है सिविल का? आई गेस नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। चलो हम इस पे आ जाते हैं। अब ये मेन जो तुम्हारा फंक्शन है ना, ईसी, अच्छा ECE। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ईसी वाले भी बंदे बढ़िया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन है रन ऐप, ये तुम्हारा फ्लटर के अंदर बिल्ट इन होता है। ये क्या करेगा, ये विजिट्स बिल्ड करेगा। विजिट अभी हम बताते हैं, थोड़ा आज इतना टाइम नहीं है, मैं जस्ट एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ। सुधांशु जल्दी जल्दी में बता दो ना। हाँ मतलब ऐसा बस इनको एग्जीक्यूट होता हुआ दिखे हाँ हाँ बस बस। एमुलेटर। तो हम एक स्टेट लेस विजिट बनाएंगे, स्टेट लेस विजिट। ये रहा, ये देखो अपने आप हो जाता है, अपने आप आ गया बन के। और इसमें मैं इसका नाम रख देता हूँ माई ऐप, और यहाँ पर मैं माई ऐप को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, अब ये कुछ एरर्स और वार्निंग्स तुम्हें दिख रही होंगी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ मैंने एक मटेरियल ऐप बनाई, मटेरियल ऐप। ये देखो सब, इसमें सब कुछ जैसे तुमने वेब में करा होगा, ये सब कुछ पहले से ही। तुम्हें कोड कम करना है, सोचना ज्यादा है, लॉजिक ज्यादा है। अब इसके बाद इधर होम कर देता हूँ, एक स्कैफोल्ड बना देता हूँ और एक बॉडी। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, इसके बारे में अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो उसके लिए हमें एक अलग सेशन रखना पड़ेगा, जिसमें हम एक एक इस हर एक लाइन का मतलब क्या है वो समझाएंगे। ठीक है, प्रॉब्ली मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट सेशन में तुम लोग अगर आओ तो हम उसके बारे में बताएं तुम्हें। तो अब इसमें एनिमेशंस का पूछ रहा है कोई, तो एनिमेशंस वगैरह हम सब कुछ अपने सेशंस में कवर करेंगे। एनिमेशंस थोड़ा बाद में आएगा, पहले बेसिक ऐप एन आप लोग बनाना सीख मैं जाएंगे, बताता हूँ उसके बाद एनिमेशन, जरूर आएगा। कुछ एक दो टाइप की ना मैं तुम्हें एनिमेट होती चीजें तो अभी हाँ दिखा चुका हूँ। ये चीजें एनिमेट हो रही है, ये अपने आप बन के आती है। गूगल हाँ ने, फ्लटर की टीम ने एक बड़ी मस्त चीज करी है कि फ्लटर एनिमेशन बनी बनाई पहले से तुम्हें मिल जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है तुम्हें। जो स्टैंडर्ड एंड्रॉयड या आईओएस से लिंक्ड एनिमेशन होती है ना, वो बनी बनाई मिल जाती है। अगर कस्टम एनिमेशन चाहिए, कस्टम एनिमेशन एक्चुअली में इज अ प्रिटी इंटरमीडिएट भी नहीं, मैं थोड़ा एडवांस नहीं कहूंगा। एडवांस। हाँ तो जैसे तो तुमने देखा होगा कि मेरी ये वेबसाइट पे छोटी सी एनिमेशन थी, देख रहे हो? अब इसके बारे में अगर मैं तुम्हें वर्क अराउंड समझाऊं, ये बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि फ्लटर वेब तो सपोर्ट ही नहीं करता एनिमेशन। तो अब मैं कैसे करूं इधर एनिमेट? अभी नया सपोर्ट आ गया वैसे एनिमेशन के लिए, कुछ पैकेजेस भी है, शायद तू भी कोई पैकेज यूज कर रहा है ना सुधांशु अपनी वेबसाइट हाँ में? हाँ हाँ, तो पर वो इम्प्लीमेंट करना इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं जो मेरा, हाँ आप लोगों ने देखा होगा ना नाम एनिमेट होकर के आ रहा है। तो हाँ उस वो तरीके नहीं के है, कई सारे एनिमेशंस हैं जो आप लोग जो मिल इम्प्लीमेंट कर जाते हैं। सकते हैं। तो काफी अगर तुम्हें एस्थेटिक लुक चीजें आता है कस्टम फिर। कस्टम चाहिए, मतलब अपनी चॉइस से ग्राउंड अप से तुम्हें बनाना है, तो हाँ एनिमेशन थोड़ा एडवांस में आएगा। लेकिन मैं चाहूंगा मैं एक दो सेशंस में तुम्हें एनिमेशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। कौन हाँ पूछ रहा था? उज्जवल, उज्जवल पूछ रहा था। हाँ, अच्छा बेसिक उज्जवल हीरो भाई, कौन एनिमेशंस वगैरह होते कौन हैं, सी ब्रांच वो से हो भी आप? आप लोग देख। अच्छा, तो बहुत बढ़िया, पीसीयू एरर आ गया वगैरह। कोई। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। चलो अब ये एरर्स को छोड़ो, अब मैं सीधा इधर बनाता हूँ एक स्कैफोल्ड, सेंटर, चाइल्ड, टेक्स्ट विजेट, और इसके अंदर हम डाल देते हैं फ्लटर फॉरवर्ड GDSC। अब देखना क्या होगा यहाँ पे, इसको रीस्टार्ट। अच्छा ये देखो कितनी बढ़िया चीज है, ये सब रीस्टार्ट अपने आप हो जाता है। अब एक बार इसको मैं कांस्टेंट कर दूं ताकि वार्निंग चलिए। ये बन के आ गई। अब सबसे पहले, अब यहाँ बाकी लोग हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, मैंने ये लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक चीज जादू देखना अब तुम। एक बारी मैं इसको ना वो कर देता हूँ, इसमें ऑलवेज ऑन टॉप का है ना फीचर। हाँ एमुलेटर ऑन टॉप। हाँ हाँ,
तो अब देखो यहाँ पर नोटिस करना, सब लोगों को दिख रहा है ना? हाँ भैया दिख रहा है। हाँ, ये टेक्स्ट का मैं साइज भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। और टेक्स्ट अलाइन, बाकी तो मतलब ऐसे हम कई सारी प्रॉपर्टीज छेड़ सकते हैं, बट अभी के लिए चलो इतना ही करते हैं। आप देखना। अच्छा, तुमने एक चीज नोटिस करी, मैंने यहाँ पर साइज चेंज करा, ये अपने आप ही बड़ा हो गया, मुझे कोई रिलोड, कुछ सेव, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। सबने देखा ये? हाँ भैया हाँ भैया बिल्कुल। देखा। अब देखो यहाँ से अपने आप ही ये चेंज हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी सुपर पावर है फ्लटर की, जो रिएक्ट नेटिव भी ऑफर करता है, बट उसमें भी इतना ऑप्टिमाइज नहीं है, उसमें तो बहुत ही बेकार है। फ्लटर की सबसे बड़ी सुपर पावर है, तुम लोग इतनी जल्दी डेवलपमेंट कर सकते हो ना, तुम्हें डायरेक्ट चेंजेस दिखेंगे। वेबसाइट में तुम्हें क्या करना पड़ता है, सेव करोगे, फिर दोबारा index.html खोलोगे, ऐसे कुछ करते होगे, है ना? तो या ब्रैकेट्स को यूज कर रहा है, या VS कोड भी यूज करते हो, तो उसमें भी एक्सटेंशन आती हैं जो वेब के लिए एनेबल कर देती हैं, बट वो इतना एडवांस नहीं है कहीं से भी। ठीक है, तो ये तुम्हारी हो गई एक बेसिक ऐप। अब इसके बारे में हम और भी बात कर सकते हैं, बट अभी मैं चाहूंगा कि हम कॉम्प्लेक्स चीजों को और आगे की चीजों को हम नेक्स्ट सेशन के लिए रखें, है ना? अब मैं चाहता हूँ कि भाई कुछ किसी को डाउट हो, कोई रेज्यूमे से रिलेटेड, या अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, या हम आगे इवेंट्स कैसे कराएंगे, या हमसे हमारे बारे में कुछ पूछना है, कुछ भी पूछना है, वी आर ओपन फॉर डाउट्स राइट नाउ। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, चाहे वो कॉलेज लाइफ से रिलेटेड हो, डेवलपमेंट से हाँ। रिलेटेड हो, या किसी भी चीज का, जो भी आपके मन में डाउट है आप पूछ सकते हैं। भैया ये पूछना है कि ना अभी डीएसए करना चाहिए या फिर ये फ्लटर ही करना चाहिए मतलब। अच्छा, भैया इसी से रिलेटेड तो मेरा भी क्वेश्चन है कि सबसे ये बहुत बढ़िया, जावा सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। एक एक ये एक करके जावा सी पहले प्लस आंसर। प्लस यूज कर हाँ, सीखने का कोई फायदा है, जावा सी प्लस प्लस वगैरह? मैं बताता हूँ। बट चलो, तुम लोग अभी जैसे मैं ऋषि का एग्जांपल लेता हूँ। ऋषि भाई, आप अभी कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो? फिलहाल तो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करा था। जावास्क्रिप्ट तूने स्टार्ट करी है, अच्छा। और इससे पहले तेरा बेस किस लैंग्वेज में? इससे पहले सी करी है। सी करी है, बहुत बढ़िया। मतलब जावास्क्रिप्ट एक अच्छी लैंग्वेज होगी पिकअप करने के लिए स्टार्टिंग में, बट अगर तूने सी कितनी करी है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है तू जावास्क्रिप्ट के ऊप्स के कॉन्सेप्ट देख के घबरा जाए, समझा? मैं बोलूंगा एक लैंग्वेज पकड़ लो। मेरे पर्सनल ओपिनियन में सुधांशु का डिफरेंट हो सकता है, बाकी लोगों का डिफरेंट हो सकता है। C++ या जावा, इन दोनों में से कुछ भी पकड़ लो, ठीक है? और बेसिक लैंग्वेज सीख लो। ये डीएसए नहीं कह रहा मैं, डीएसए के भी ऊपर आते हैं हम खुद, मैं तो खुद भी डीएसए पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट डीएसए पे आते हैं। तुम लैंग्वेज पकड़ ली तुमने, अब तुम आ जाओ उसके बाद, तुम समझो कि तुम्हें अब बनाना क्या है। डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट ऐसे नहीं होती कि मुझे एक्स कंपनी में वाई पैकेज के साथ प्लेस होना है। डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट होती है कि मुझे अपना कुछ बनाना है। अगर लोग रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज से, तो अ, जब तुम देखो, ऐसे किसी को कुछ भी पूछना हो, इंटरप्ट कर रहा हो बीच में, मेरे को इंटरप्ट कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव रहे सेशन। अब जैसे तुमने मान लो, तुमने कहा कि भाई मेरे को डीटीयू के लिए एक ऐप बनानी है, जैसे किसी ने लॉस्ट एंड फाउंड वाली ऐप किसी ने बनाई हुई थी डीटीयू में, कोई सीनियर ने बनाई हुई थी। इट वाज अ वेरी गुड ऐप, बट मान लो तुमने वही बनानी है, जैसे तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ गया कि यार मेरे को, या फ्री रिसोर्सेज के बारे में फर्स्ट ईयर्स ने सुना होगा, सुना है? फर्स्ट ईयर ने फ्री रिसोर्सेज, हाँ सुना एफ है। रिसोर्सेज, सॉरी, जो भी नाम है उसका, है भाई ना? फ्री एक मिड सोर्स। सेम के लिए पढ़ा होगा वहां से तुमने। तो वो अभी जीडीएससी में वो बंदा चैतन्य आनंद, ही इज आल्सो को लीड इन द वेब सर्किट। तो उसने भी मतलब बहुत सही चीज बनाई अपने फर्स्ट ईयर में वेबसाइट से, बट क्या उसकी एक ऐप भी तो होनी चाहिए? तो मैं एग्जांपल थोड़ा सा वियर्ड ले रहा हूँ, बट उसकी ऐप होगी, तुम अपने फोन पे चीजें एक्सेस कर सकते हो और जल्दी। तुम अपना टास्क ले लो कि मैं एक ऐप बनाऊंगा फ्लटर से, जो फ्री रिसोर्सेज, एफ रिसोर्सेज को मैं क्लोन करूंगा। मैं नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट
उसके मैं फ्लटर से ऐप बनाऊंगा। जैसे तुमने ये उठा लिया, तो अब जब तुम फ्लटर पे आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये डीएसए के साथ साथ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बस एक बहुत बड़ा मैं तुम्हें कैच देता हूँ कि जैसे अगर तुम रोज पिज्जा खाने लग जाओगे तो तुम्हारा दाल रोटी खाने का मन नहीं करेगा, है ना। तो अब फ्लटर पिज्जा है, डेवलपमेंट पिज्जा है, डीएसए तुम्हारी दाल रोटी है। तो खानी तो दाल रोटी है रोज। तो अगर अच्छी ब्रांच से आ रहे हो, तुम्हें पता है कि प्लेसमेंट्स बढ़िया हैं इधर, हो जाती हैं अच्छी प्लेसमेंट्स, इसके बारे में भी हम बाद में बात कर सकते हैं। तो तुम डीएसए को एक लेवल तक करो, बट साथ साथ में डेवलपमेंट भी स्टार्ट करो, क्योंकि आने वाले टाइम में कंपटीशन बढ़ेगा। हर कंपनी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट मांगेगी। और क्या कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें कुछ क्रैक कर लेते हो, तुम्हें कुछ हिट कर जाता है कि मैंने स्टार्टअप बना लिया अपना। अब तुम स्टार्टअप अगर कॉलेज में बना रहे हो तो नाउ यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इट विद डीएसए, यू नीड डेवलपमेंट, सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट। अब उसमें बात आ जाती है कि तुम्हारी सही टेक्नोलॉजी क्या होगी। अभी हम फ्लटर की बात कर रहे हैं तो लेट्स से फ्लटर ही है। सुधांशु, तुझे कुछ ऐड करना है तो बता। हाँ, मैं समर्थ के क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ कि क्या करें। तो समर्थ, पहले ये बताओ कि तुमने कहाँ तक डीएसए किया है या अभी शुरू ही नहीं किया? मैंने अभी शुरू ही नहीं किया है। शुरू नहीं किया ना, फिर हम्म। तो बहुत बढ़िया। तो देखो, मेन तो ये चीज़ होती है कि फर्स्ट ईयर में हम जब आते हैं तो हमारे मन में ये होती है कि जो हमने सुने हैं हम लोगों ने वो चीज़ें कि इसका 50 लाख का पैकेज लगा, इसका 60 लाख का पैकेज लगा, तो वो एक्चुअल में लगता कैसे है? और उसमें भी तुम लोगों ने अब तो सब यूट्यूब देख के आते हैं कॉलेज में, तो पता ही होगा कि उसमें बेस अलग होता है, स्टॉक्स अलग होते हैं, वो सब चीज़ें पता ही होंगी। तो अब ना एक चीज़ ये होती है कि देखो, डीएसए जो है ना, उसको अलग चीज़ मत समझो, उसको ना पार्ट ऑफ लाइफ बना लो, आने वाले 3 साल के लिए तो एटलीस्ट 3 या 4 साल के लिए। क्योंकि एक बार कंपनी जॉइन कर लोगे, उसके बाद कोई डीएसए नहीं पूछेगा तुमसे, उसके बाद तो तुम डेवलपमेंट ही कर रहे होगे, पर तब हम्म तक तो चीज़ें करनी है, तो उसको पार्ट ऑफ लाइफ बना लो। और अभी क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही हो मोस्टली लोग जो यहाँ जॉइन किए हैं, सब फर्स्ट ईयर में ही है, तो अभी तो आप लोगों के पास बहुत टाइम है। तो आप लोग अभी जैसे अभी सी के साथ सी प्लस प्लस मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि फिर सी भी समझ नहीं आएगी। तो एक बार सी वाले पार्ट को बीत जाने दो, सेकंड ईयर में भी है कोई। अच्छा, कौन सी ब्रांच है? ईसी। अच्छा, इसी से है भाई, बढ़िया बढ़िया, इसी से। हुँ। बहुत बढ़िया है। तो डीएसए को तो पार्ट ऑफ लाइफ बना लो, ठीक है? धीरे-धीरे डीएसए करना स्टार्ट करो, रोज़ थोड़ी-थोड़ी एक टॉपिक किया, एक क्वेश्चन किया, तो एक टाइम डीएसए बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर डेवलपमेंट जो है ना वो एंडलेस है। डीएसए तो टॉपिक वाइज़ तो एक पॉइंट पे आने के बाद वो खत्म हो ही जाता है, क्वेश्चन्स उसमें भी कभी खत्म नहीं होते, लॉजिक बिल्डिंग उसमें भी कभी खत्म नहीं होती, और डीएसए भी मैं तो कहूँगा इक्वली इम्पोर्टेंट है। इक्वली क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल सही बोला। क्योंकि आपका जो ओए होगा, जो फर्स्ट राउंड होता है इंटरव्यू का, तो वो तो डीएसए बेस्ड ही होगा। डेवलपमेंट तो आपसे जब एचआर सेकंड या थर्ड राउंड होता है, आई थिंक, तो उसमें ही पूछा जाता है। प्रोजेक्ट्स पे जब बात आती है तभी पूछा जाएगा, पर उससे वहाँ तक भी तो पहुँचने के लिए आपको डीएसए चाहिए ही ना। तो डीएसए आप स्टार्ट करो, और मैं मेरे से अगर पर्सनली पूछोगे तो मैं सी प्लस प्लस ही बोलूँगा, क्योंकि सी प्लस प्लस और फिर जब आप फ्लटर करोगे तो डार्ट स्पेशली, तो वो काफ़ी ना सिमिलर से लगेंगे दोनों। हाँ, ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत अलग चीज़ कर रहे हैं। जैसे सी और सी प्लस प्लस में ये कन्फ्यूज़न बहुत होती है कि उधर किसी और तरीके से प्रिंट कर रहे हैं, इधर किसी और से, तो याद करते-करते ही भूल जाओगे, और याद करने वाला कुछ भी नहीं है दोनों में से। ना आप डीएसए याद कर सकते हो, ना आप डेवलपमेंट याद कर सकते हो। डेवलपमेंट में तो स्पेशली आपको एक, बल्कि मैं तो कहूँगा 10-15 मिनट हम किसी सेशन में ये भी सिखाएँगे कि चीज़ों को गूगल किस गूगल तरीके से कैसे किया करना है। जाता है। हाँ। क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए हम स्टैक ओवरफ्लो पे जाएँ, इधर से ढूँढे, उधर से ढूँढे। डेवलपर यही होता है जो इधर-उधर से चीज़ें ढूँढ के, पर उसको पता होता है कि किस चीज़ को किस जगह इम्प्लीमेंट करना है और हम्म कब करना है। तो हमें वही बनना है, और डीएसए से आपकी लॉजिक बिल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो अभी ये सी वाला पार्ट जो है सेमेस्टर का, वो खत्म हो जाने दो, उसके तुरंत बाद ही डेवलपमेंट भी शुरू करो और डीएसए भी डीएसए शुरू भी करो। शुरू करो। दोनों चीज़ें एक साथ करोगे तो क्या होगा, खुद एंगेज हो जाओगे इन चीज़ों की तरफ। तो जो अभी टाइम वेस्ट हो रहा होता है ना, कई क्लासेस आपकी ऐसी होती होंगी जिसमें आपको समझ तो कुछ आता नहीं होगा। कई क्या, बल्कि कई तो कहेंगे किसी में कुछ समझ नहीं आता। तो उन केसेज़ में आप क्या करो, आप पीछे बैठो और वहीं पे आप अपना डीएसए स्टार्ट करो, वहीं पे आप क्वेश्चन पढ़ो। कोई भाई ऐसे ये थोड़ी है आपको कोई ये रोक लेगा। प्रमोट मत कर भाई। नहीं, नहीं, मतलब अगर मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि आप टाइम वेस्ट होने से बचाओ अपना। मतलब कॉलेज क्लासेस में के होते हैं बीच तो में गैप बचता है, हाँ, उसमें डीएसए करो। हाँ।
जैसे डीएसए एक हो क्लास जाता है खत्म उसमें। हुई उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे गैप है, फिर उसमें क्या करते हैं सब हम्म, वहीं ओएटी के आसपास घूमते हैं, तो आप भी हाँ घूमो और वहाँ घूम के वहाँ एक जगह बैठ जाओ, एक क्वेश्चन कर लिया। अगर आप दिन का एक मतलब क्वेश्चन करने की भी हैबिट बना लोगे ना, तो भी आप हम्म, बहुत आगे हो जाओगे। हाँ डेली एक क्वेश्चन लीप से भी और काफी सही हो जाता है। अच्छा एक हाँ, मिनट, अब ये उज्जवल का एक क्वेश्चन था कि फ्रेमर हाँ, रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस में हम फ्रेमर से एनिमेशन कस्टमाइज करते हैं। देख, फ्रेमर से तो करते हैं हम, फ्लटर में इसका ऑल्टरनेटिव राइव है। मैंने वो पीपीटी में डाला था राइव वाली चीज भी। तो राइव पूरा फ्लटर पे बिल्ड है, और फ्लटर इनफैक्ट उसका सपोर्ट रिएक्ट के लिए भी है, बट फ्लटर में हम राइव से एनिमेशन कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि राइव से कस्टमाइज क्यों करना है? तुम्हें जब गूगल बना के दे रहा है चीजें, तो पहले स्टार्ट करने के लिए तुम वही यूज करो। और मैं कहता हूँ कि जो जिस सॉफ्टवेयर जिस प्लेटफॉर्म के लिए जैसी एनिमेशन विंडोज पे यूज होती है, मैक ओएस पे यूज होती है, एंड्रॉइड पे यूज होती है, आईओएस पे यूज होती है, तुम अगर वैसी यूज करके अपनी ऐप बनाओगे ना, तो सीमलेस लगेगी। बेस्ट रहता है हाँ, सीमलेस एप्स। हाँ, कुछ स्पेसिफिक केसेस हो सकते हैं जहां पर तुम्हें वही ऐसी एनिमेशन चाहिए कि मैं जैसे डेटिंग ऐप का एग्जांपल ले लो, तो लेफ्ट राइट स्वाइप हो रहा है, तो वो वाली एनिमेशन हो गई। या कोई बटन इंस्टाग्राम पे लाइक वाली है, तो उसके लिए वो हम बिना राइव के भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट कोई बहुत ही हाँ, कॉम्प्लिकेटेड एनिमेशन है, तो व्हाट वी डू इज वी गेट अ जेसन फाइल फ्रॉम द एनिमेटर। वो आफ्टर इफेक्ट्स या जहां पर भी वो करते एनिमेटर हाँ। लोग करते होंगे, उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपने उसमें। ठीक है, वो फिर अच्छा। हमारा कंसर्न नहीं है एज अ डेवलपर, एज अ ऐप डेवलपर। समझे? और एक और ब्यूटी है फ्लटर की कि आप यहाँ पे ना कुछ भी पेड नहीं है। किसी भी तरीके की चीज़ें कुछ पेड नहीं है, सब कुछ फ्री है, एक काफ़ी अच्छी लिमिट तक और उसके वहाँ वहाँ तक भी आप अगर पहुँच जाओगे तो आप काफ़ी अच्छे डेवलपर हाँ, बन चुके इधर हमने होगे। अभी अभी हमने बैकएंड की बिल्कुल बात नहीं करी, जैसे फायरबेस हाँ, वगैरह की। हम उसके बारे में बात करेंगे मे बी नेक्स्ट सेशन में। बट आई गेस हाँ, सुधांशु, हम क्वेश्चंस आगे भी ले सकते हैं, बट हाँ, अत्मिका इज हियर एंड आई वुड लाइक हाँ। टू कॉल हर, शी इज द जीडीएससी लीड, तो आई वुड लाइक टू कॉल हर फॉर अ क्लोजिंग नोट। या हाय गाइस, बहुत अच्छे से सेशन ले रहे थे, मैं अभी सुन रही थी। तो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग एंड वी होप यू लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन। एंड नेक्स्ट सेशन भी अभी होगा 1-2 वीक्स में एंड यू विल बी इन्फॉर्म्ड एज सून एज पॉसिबल एंड वी सी यू ऑल देयर। सो किसी को अगर डाउट्स वगैरह पूछने हैं तो हम अभी मतलब ले पूछ सकते हैं। सकते हैं। हाँ, बट दिस इज नाउ, यू गाइस कैन नाउ लीव इफ यू वांट टू। थैंक अच्छा, यू भैया। अच्छा, चैट में भी चल रहा है कुछ कुछ। लॉजिक बिल्डिंग इम्पोर्टेंट है। नहीं, फ्लटर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ट्विटर के लिए वो है नेटिव इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है इम्पोर्टेंट नहीं है। बट बट तुम्हें मतलब बेसिकली फ्लटर में जब तुम चीजें इंप्लीमेंट करोगे ना, जैसे तुम कॉटलिन में करते हो, सिमिलर तरीके से इधर कॉम्प्लेक्सिटी का ग्रेडियंट। अब सब लोग इंजीनियर है तो ग्रेडियंट में वर्ड यूज कर सकता हूँ। तो ग्रेडियंट जो है ना, वो बड़ा ही स्लो ग्रेडियंट है। कॉटलिन में ना या जावा में जैसे ग्रेडियंट बहुत ज्यादा आ गया। मेरा एक दोस्त है, उसने उसके साथ मैं एक प्रोजेक्ट अभी बना रहा हूँ, तो वो उस बंदे ने पहले जावा सीख से कॉटलिन पे स्विच करा था नेटिव में, और मैंने उसे जबरदस्ती फ्लटर पे स्विच कराया। तो नाउ इज सुपर हैप्पी कि भाई फ्लटर तो बहुत बढ़िया है, फ्लटर इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, और अभी वो पूरा फैन बॉय कर रहा है फ्लटर पे। तुम लोग भी फ्लटर कर लोगे, और तो तुम्हें भी मतलब तुम मतलब भक्त बन जाओगे फ्लटर की, कि भाई अब तो और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है, बट सबके अपने चॉइसेस हो सकते हैं। बट और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊँ एज़ अ बिगिनर तो ऐसा नहीं है कि आपको कभी कॉटलिन सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो अब तक कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मैं स्पेशली जाके कॉटलिन सीखूँ और उसके बाद मैं फ्लटर पे आऊँ। हाँ, ऐसा नहीं है कुछ भी, आप फ्लटर ही सीखिए। फ्लटर सीखते-सीखते अगर कहीं पे आपको ऐसी कोई चीज़ पर्टिकुलर चीज़ में ऐसा फ़ील होगा, एक टाइम के बाद होगा, तो वो आप पर्टिकुलर टॉपिक सीख लेना। ऐसा नहीं है कि आप पहले पूरी कॉटलिन सीखो और फिर फ्लटर पे आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे तो फिर आप कहोगे कि स्विफ्ट भी सीखनी चाहिए क्योंकि ऐप तो हम आईओएस पे भी बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लटर इसीलिए तो बनाया गया कि आपको अलग-अलग चीज़ें ना सीखनी पड़े। अगर वैसे ही सीखनी होती तो फिर हम फ्लटर पे क्यों ही आते? तो यही मेन पर्पस ही यही है कि हम एक कोड लिखें और वो सभी प्लेटफ़ॉर्म पे चले। कुछ हाँ, कुछ परमिशंस वगैरह के बट लिए सुधांशु, हमें उसका जाना पड़ता है। क्वेश्चन
उसका क्वेश्चन लॉजिक बिल्डिंग से रिलेटेड था। लॉजिक बिल्डिंग फ्लटर में भी वही होगी जो कॉटलिन में हुई है, समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट्स तो वही है ना, घुमा फिरा के। हाँ, कॉन्सेप्ट्स वही है। कॉन्सेप्ट्स तो जब बल्कि मैं कहूंगा कि लगभग हर डेवलपमेंट में अलग ही सेम ही होते हैं, बट Same वो होते हैं। सिंटेक्स ही अलग होते हैं। अच्छा, हाँ, वो वही पूछ रहा था जिसका मैंने आंसर किया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सही है। समझ गया था, वो वही पूछ रहा है। नहीं बढ़िया भाई। और किसी को कुछ पूछना है तो और कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते कुछ हैं, भी पूछ सकते हैं। और किसी चीज से भी रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ फ्लटर हाँ का अभिषेक भाई इवेंट बोलो। होते हैं। हाँ, पूछो। Hello, Ekansh, Siddhanshu. So my question was that कि Flutter की या कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी कोई ऐसी कम्युनिटी है जो एक्टिव हो, मतलब डेली की? जीडीएससी है, और क्या चाहिए तुम्हें? जीडीएससी के ग्रुप में तुमने अब ज्वाइन कर ही लिया होगा प्रॉब्ली, बट हाँ, फ्लटर के बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग जगहों पे। वो भी जीडीएससी ही करवाता है, अलग अलग जीडीएससी करवाते हैं। बट हमारा चैप्टर अब हम फ्लटर पे एटलीस्ट जो ऐप वाली टीम है वो काफी फोकस करेगी। हम ज्यादा सेशंस रखवाएंगे। यू कैन आस्क एनीथिंग एनी टाइम ऑन व्हाट्सएप और कनेक्ट विद अस ऑन लिंक्डइन। बट ओके, ये बेस्ट बट कम्युनिटी है। मतलब कम्युनिटी लाइक कि डिस्कॉर्ड पे कोई सर्वर हो, लाइक ग्लोब ओवरऑल? अच्छा, ग्लोबल। हाँ तो ओवरऑल, हाँ, ओवरऑल है। फ्लटर का ऑफिशियल एक तो डिस्कॉर्ड है, वहां तुम ज्वाइन कर सकते हो। उसका भी लिंक मेरे पास अभी है नहीं, मैं ज्वाइन हूँ, मैं भेज दूंगा तुम्हें अगर चाहिए होगा तो। और और लिंक्डइन पे दूसरा भी है उनका। दूसरा तुम ज्वाइन कर सकते हो डिस्कॉर्ड की। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, एक केडन करके बंदा है, उसका उसका भी काफी अच्छा कम्युनिटी है। कम्युनिटी इज प्रीटी एक्टिव देयर। उसकी भी डिस्कॉर्ड सर्वर पे हूं मैं। और मतलब ऐसे कई सारे डिस्कॉर्ड सर्वर मिल सकते हैं तुम्हें जो ग्लोबल है। बट अगर मैं कॉलेज लेवल पे छोटे स्केल पे बात करूं, तुम्हें ज्यादा चीजें समझ आएंगी, समझ रहे हो? अब तुम कम्युनिटी में जाके तुम, हाँ, जाना चाहिए, कम्युनिटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फ्लटर जैसी टेक्नोलॉजीज कम्युनिटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, एंड द कम्युनिटी इज रियली ऑसम। मतलब तुम किसी को भी कुछ भी जाके पूछोगे, लोग यूजुअली रिस्पॉन्स करते हैं अगर फ्लटर से रिलेटेड हुआ तो। बट हम भी हैं तुम्हारे पास, अगर हमसे ऐसी कोई चीज है जो हमें भी समझ नहीं आ रही, जो है मतलब बहुत सारी चीजें जो हमें भी नहीं आती, ठीक है, मतलब फ्लटर की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर 3 महीने में फ्लटर अपडेट होती है। यू आर फोर्स टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी 3 मंथ्स। तो एक बार ही तुम्हारा बेस बन जाएगा ना, तो तुम बहुत सारी चीजें ऐसी कर पाओगे जो कम्युनिटी को भी तुम गिव कर सकते हो। जहां तक अभिषेक का ओके, डाउट था। हाँ हाँ, मतलब वो तो समझ गया। लेकिन एक्चुअली एकांश, मैं करंटली फाइनल ईयर में हूँ अच्छा, ग्रेजुएशन के। तो मतलब मैंने रेक जेएस नोड वगैरह सब मतलब करके रखा, प्रोजेक्ट मैंने बना चुका हूँ। अब मैं फ्लटर में मतलब स्विच हो रहा हूँ, लाइक सीख रहा हूँ अभी। तो अच्छा, लाइक ऐसी कोई आप कम्युनिटी हो? इंट्यूस हो क्या? हाँ, आई एम फ्रॉम जीटीयू। अच्छा, तो मतलब आपको फ्लटर पे स्विच करना है? हाँ, मतलब सोच रहा हूँ कि ट्राई करूँ कि फ्लटर क्या है, एक्सप्लोर करूँ। अच्छा। एंड्रॉइड किया है थोड़ा बहुत, 1-2 प्रोजेक्ट्स बनाए एकदम हम्म। मिनिमल से। तो एंड्रॉइड स्टूडियो तो आता है मुझे। मतलब फ्लटर में स्विच करना चाहता हूँ, मतलब बीच में कोई एरर आए, कोई इश्यू आया तो इजीली मैं रिजोल्व कर पाऊँ, ऐसी कोई कम्युनिटी हो तो अच्छा रहता है, लाइक इसका लर्निंग। कम्युनिटी में फिर तो मैं आपको लिंक ही शेयर कर देता हूँ, मतलब इसका श्योर है। मैं आपको, क्या आप मेरे को डीएम कर दोगे व्हाट्सएप पे? मैं आपको कम्युनिटी श्योर का लिंक श्योर। भेज दूंगा। और ठीक कोई है। भी डेवलपमेंट रिलेटेड चीजों के लिए स्टैक ओवरफ्लो बेस्ट रहता है, विद इन 1 हाँ डे ऑब्वियसली उस पे आ ही जाता है। हाँ, आई ट्राइड इट, बट मतलब उसमें लाइक देर लगती है। लाइक अभी मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी कुछ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो शाम तक मुझे वेट करना रहेगा कि कुछ रिस्पॉन्स आ जाए किसी का। नहीं अभिषेक भैया, आपके साथ पता है क्या प्रॉब्लम आ रही होगी? आप जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस है ना, हाँ, मे बी बिकॉज यू आर वो न्यू टू पुराने कोड फ्लटर, के। तो वो पुराने कोड के होते हैं। तो वो हम लोग तो जैसे थोड़े टाइम से कर रहे हैं, तो हम मतलब मे बी आपने हमसे काफी ज्यादा डेवलपमेंट करी हो, बट हम ना वो फ्लटर का पुराना कोड भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, तो अच्छा हम अच्छा। ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो हमें वो सोल्यूशन भी काम करते हैं। तो आप सही बोल रहे हो, आपको कम्युनिटी होनी चाहिए। मैं 1-2 लिंक्स भेज देता हूँ आपको, आप मेरे को डीएम कर देना व्हाट्सएप पे। ओके, श्योर, बाय द वे, थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर इवेंट। थैंक यू।
गाइस क्लाउड चैट्स में भी है तो तुम उनको भी साइमल्टेनियसली ले सकते हाँ हो। वही हाँ देखे। हाँ 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 हम EIE लोग कौन तो सी ब्रांच फ्लटर है? करवाएंगे ही। हम लोग विभू शुरू दादा से ही पूछ रहा है करवाएंगे कि बिल्कुल। डेवलपमेंट के साथ डीएसए मैनेज कैसे करें, उसका वो डाउट है, वो EIE ब्रांच से है। अच्छा, तो मैं बताता हूँ, फ्लटर डेवलपमेंट के साथ डीएसए मैनेज करना पॉसिबल तो है। देखो, थोड़ा सा कॉलेज अगर कम जाओगे तो पॉसिबल तो है, मतलब कॉलेज। वही सेम हाँ, वही लेकिन एक सेम बात चीज जो बताता है। हूँ, हो नहीं पाता, क्योंकि तुम्हें जब डेवलपमेंट अच्छी लगने लग जाती है ना, तो फिर डीएसए तुम्हें जबरदस्ती करना पड़ता है। ये शायद कोई बताता नहीं है, बट मैं तो तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट थोड़ा पिज्जा है और डीएसए दाल रोटी है। तो फोर्सफुली डीएसए करना पड़ेगा। टाइम तो मिल जाता है, देखो क्लासेस के बीच में, मेट्रो में ट्रैवल करते हुए, अगर पीजी में रहते हो तो और भी बढ़िया है, टाइम मिल जाता है। तुम डीएसए भैया को, हाँ भैया एक्चुअली मैं सीटी भुवनेश्वर से हूँ, मतलब अच्छा मैं जीडीएस वॉलंटियर हूँ। तो अच्छा भैया क्या था कि मेरा पाइथन था, तो मैं सीनियर भैया मुझे कुछ गाइड किए कि पाइथन है तो डाटा साइंस के फील्ड में जा सकते हो। तो धीरे धीरे गया, एमएल में थोड़ा इंटरेस्ट आया, एक दो प्रोजेक्ट बना, और फिर कुछ सीनियर्स ने गाइड किया कि आप मतलब कर सकते हो, मतलब एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के साथ मशीन लर्निंग मिला के भी प्रोजेक्ट कर सकते हो। हाँ तो धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। तो कैसे मतलब कुछ फ्लो, कैसे गाइड की रोड मैप, कुछ मतलब कैसे स्टार्ट करें? अच्छा, तो अगर फ्लटर को के साथ तूने फिर मेरे को एमएल का देख, सच्ची में कोई आइडिया नहीं है। कोई और जीडी हमारा को लीड या लीड में भी बेटर बता पाएगा एमएल के बारे में, बट मैं ये बता सकता हूँ कि एमएल के मॉडल्स अगर आ जाते हैं तुम्हारे पास, तो मैंने एक ऐप बनाई थी बेसिकली पोकेमॉन डिटेक्शन वाली। तो तब मैंने ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं किया था, तब थोड़ी मेरी इम्प्लीमेंटेशन अलग थी, बट करंट इम्प्लीमेंटेशन का क्या सीन है, तुम फायर बेस में ना कस्टम मॉडल्स इंप्लीमेंट कर सकते हो, बना सकते एमएल के, ठीक है। उसके बाद तो सिर्फ फ्लटर ही रह गया ना। एमएल मॉडल अगर तेरे पास कहीं से आ गया, जो भी तेरा, मतलब मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे को एमएल के बारे में ज्यादा नहीं पता, बट जैसे भी वहां पर चीजें वर्क करती हैं, तुम एमएल का तुम्हारे पास अगर मॉडल है, तो तुम फ्लटर में क्या कर सकते हो, तुम उस मॉडल के डिफरेंट फंक्शंस को कॉल करके ऐप बना सकते हो, और वो तो बस इट इज जस्ट अ थिंग ऑफ डेटा हियर एंड देयर। इसका रोड मैप से बेटर मैं तेरे को कोई यूट्यूब पे रिसोर्सेज, एक अक्षत मदान करके चैनल है। हाँ अक्षित मदान हाँ, उस बंदे ने ही हैज मेड अ फ्यू वीडियोस अ ईयर बैक ऑन एमएल फेस एंड डिटेक्शन, इमोशन डिटेक्शन वगैरह वाली हाँ ये सब। ऐप है। तो ट्राई स्टार्ट करने के लिए तो उन प्रोजेक्ट्स को देख ले, एंड फ्रॉम देयर ऑन यू कैन लाइक गो फर्दर आल्सो। भाई डायरेक्ट फ्लटर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कोटलिन का कुछ नॉलेज ना ना ना, डायरेक्ट फ्लटर डायरेक्ट फ्लटर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू भैया। तब तक मैं अर्पित का क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैंने कोटलिन बेसिक खोल लिया। हाँ हम लोग फ्लटर स्टार्ट करवाएंगे, और आज आपने देखा ही किस तरीके से इंस्टॉल करना है, और अगले सेशन से हम बिल्कुल बेसिक एप्स बनवाना स्टार्ट करेंगे, और आने वाले सभी सेशंस में धीरे धीरे जो है हम बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस टॉपिक तक सब कुछ अपने सेशंस में ही करवाएंगे। और कोड अलोंग वाली चीजें भी होंगी आगे आने वाले सेशंस में, कि आप हाँ, हमारे साथ आगे साथ आने वाले कोड कर सेशन में सकते हैं। कोड अलोंग ही होगा ज्यादा, वैसे मैं सही बोलूँ तो। हाँ अभी तो आज हम हमने रखा बिल्कुल नहीं क्योंकि करवाएंगे। टाइम की थोड़ी कमी थी। हाँ, और अब फर्स्ट सेशन भी है, तो फर्स्ट सेशन में हाँ बहुत सारी चीजें करवा देंगे, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि चल क्या रहा है। तो आज तो मेनली यही है कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो सॉल्व हो जाएं, ताकि नेक्स्ट सेशन से आप हमारे साथ स्टार्ट कर सके कोड करना। ऑलराइट गाइस, आई गेस यहाँ पर अब सब लोग खत्म कर सकते हैं और तो मीटिंग। कोई डाउट नहीं किसी का? अगर किसी का कोई डाउट है, लो लास्ट पूछ लो। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट सेशन के लिए स्पैम कर देना लिंक्स अपने अपने ग्रुप्स में, तो और भी नेक्स्ट ज्यादा लोग सेशन आएंगे। 16 को है हमारा। हाँ 16 को है। चलो, थैंक यू एवरीवन।
थैंक यू एवरीवन। फेस्ट एंजॉय करो सब।